متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحمن الرحیم. بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے ان کو ترتیب وائز خانہ بندی کر کے ایک مرتب نظام کے اندر جمع کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو آسانی سے مطلوبہ چیز تک رسائی حاصل ہو سکے. آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں تو اب ضروری ہے کہ آپ وہ کتابیں موضوع کے مطابق یا مصنف کی تالیف کے عنوان کے مطابق ان کو مرتب کر کے الماریوں میں جوڑ کے رکھیں. تو ایک خانہ بنا دو علم الاصول کے عنوان سے، دوسرا خانہ بنا دو فقہ کے عنوان سے، تیسرا خانہ بنا دو فلسفے کے عنوان سے، چوتھا خانہ بنا دو منطق، وہکذا تاریخ، فقہ، حدیث. بھئی کھانے بنا کے آپ نے یہ جو ترتیب وائز ساری کتابیں جمع کی ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو جب ضرورت ہو کسی کتاب کی تو آپ تلاش میں پورا کتاب خانہ جو ہے درہم بھرم نہ کریں. خانے کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے، وہ فلاں موضوع کے اندر ہے، فلاں موضوع کی کتابیں فلاں خانے میں ہیں، آسانی سے آپ وہاں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو مناسب ترتیب نے آپ کے سارے مسئلے حل کر دیے. اگر یہ مناسب ترتیب نہ ہوتی تو مطلوبہ کتاب آپ کو کتاب خانے سے ڈھونڈنا مشکل تھا. ٹھیک ہے؟ تو کتاب خانے کے اندر آپ نے کتابوں کو موضوع کے مطابق یا مصنف کے عنوان کے مطابق یا علوم کے مطابق کوئی ایک ضابطہ آپ دیں گے جس ضابطے کے تحت آپ نے ان کو مرتب کرنا ہے، ترتیب وائز جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ترتیب کا مد مقابل کیا ہے؟ انتشار، منتشر ہیں، بکھری ہوئی ہیں، مرتب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ترتیب ہے یا یہ منتشر ہے؟ اگر ترتیب ہے تو اب اہل علوم کی ذمہ داری ہے اس کائنات کو، ان موجودات کو، کائنات کے اندر جو چیز بھی وجود رکھتی ہے ان سب کو اس لائبریری والی کتاب خانے والی مثال کو سامنے رکھو. اہل علم جو ہیں، ماہرین علوم جو ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کائنات کی ان تمام موجودات کو ایک مرتب نظام کے تحت جمع کریں تاکہ مطلوبہ چیز کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے کتاب تک رسائی آسان ہو جائے، مطلوبہ چیز تک، اس کی پہچان تک، اس کی آشنائی حاصل کرنے تک آسانی سے ہماری فکر پہنچ سکے. وہاں ہاتھ کی رسائی ہے، یہاں تمہاری فکر کی رسائی ہے. ہاتھ کی رسائی بھی ترتیب کے مطابق ہوگی، ترتیب ہوگی تو آسانی سے آپ کا ہاتھ مطلوبہ کتاب تک پہنچ جائے گا. اس کائنات کے اندر جو موجودات ہیں ان کو بھی آپ ایک نظام کے تحت ترتیب کے اندر لے آؤ گے تو ہماری فکر آسانی سے اس چیز کی معرفت کو حاصل کر لے گی. ٹھیک ہے؟ تو ماہرین علوم نے کائنات کی ان تمام موجودات کو، ٹھیک ہے، کائنات کی ان تمام موجودات کو ایک نظام اور ترتیب کے اندر ایک مرتب طریقے سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور جمع کرنے کی کوشش جو ہے یا یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے ان موجودات کو اس ترتیب میں لانے کا جو نظام بنایا گیا ہے یہ نظام لیا گیا ہے
नौ इजाफी से। बहस याद है? मौजू कलाम क्या है हमारा? नौ इजाफी। नौ इजाफी से उन्होंने सपोर्ट ली है और कायनात के इन तमाम मौजूदात को एक निज़ाम और तरतीब के अंदर जमा करने की कोशिश की है। ठीक है? नौ इजाफी क्या है, वहां कैसे सपोर्ट ली गई है? कहते नौ इजाफी होता है एक ऐसा मफहूम कुल्ली जो किसी दूसरे मफहूम कुल्ली के तहत जो उससे आम है, दायरे में बड़ा है, जो किसी बड़े दायरे वाले मफहूम कुल्ली के तहत दर्ज हो, बशर्ती कि ये मफहूम अपने अफराद के लिए जाती की हैसियत रखता हो। हर कुल्ली जाती नहीं होती, ताकि आप हर कुल्ली को जो है वो नौ इजाफी कह दें। ना ना, हम उस मफहूम कुल्ली की बात कह रहे हैं जो अपने अफराद और मसादिक के लिए ऐनुल ज़ात की हैसियत रखता है। ऐसे मफहूम कुल्ली को किसी अब उससे बड़े दायरे वाले मफहूम कुल्ली के तहत आप दर्ज करोगे तो ये जो दर्ज होने वाला मफहूम कुल्ली है इसको नौ इजाफी कहते हैं। तो जमा आप कैसे करेंगे, तरतीब इनकी कैसे देंगे? कहते तरतीब ये है कि आप इंसान के मतहत अफराद हैं, ठीक, इन अफराद के ऊपर अलैकुम सलाम, इन अफराद के ऊपर जो है बड़ा दायरा जिसका है वो ऐनुल ज़ात इनका अपना मफहूम नौ है। इंसान के ऊपर जो उसका ऐनुल ज़ात है जिसका दायरा उससे बड़ा है वो हैवान है। अच्छा, तो यहाँ तक इंसान और हैवान इन दो खाने के अंदर सारी वो मौजूदात जमा हो गई जिनको आप हैवानात कहते हो। ठीक है? अच्छा, हैवान से बड़ा दायरा जो है वो है किसका जी? नबातात का, जो नमू पाती हैं, जो बड़ा होने की, हुजूम के साइज के बड़ा होने की, बढ़ोतरी की, ग्रोथ की जिनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है, चाहे वो एक ही जगह पे ग्रोथ पाते हैं या वो मुतहर्रिक हैं। ठीक है? तो जिसमें नामी जो है वो नबातात जो है उन दोनों को शामिल है। तो अब नबातात जो है उसका दायरा हैवानात से मजीद बड़ा था, तो उसके लिए हम क्या ले आए? जिसमें नामी बोला तो इसके अंदर नबातात भी आ गए। अब हैवानात से बड़ा दायरा किसका हो गया है? नबातात का। देखो कायनात किस तरह समेटते हैं माहिरीन लोग। नबातात उसके अंदर आ गए। नबातात से फिर बड़ा दायरा जो है अजसाम का है। किनका है? अजसाम का। वो चीजें जो जिस्म रखती हैं, चाहे उनके जिस्म के अंदर ग्रोथ होती है या ग्रोथ नहीं होती है। तो जिस्म नामी के ऊपर हम एक बड़े दायरा वाला एक मफहूम ज़ाती लेकर आए हैं, वो है जिस्म मुतलक। जिस्म मुतलक जो है मौजूदात को शामिल है, लेकिन फ़कत उन मौजूदात को जो इस कायनात के अंदर जिस्म जिस्मानियत के अंदर वजूद रखती हैं, जो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा हैं मगर मौजूद हैं, वजूद रखती हैं मगर जिस्म नहीं रखती हैं, उनको जिस्म मुतलक ये वाला मफहूम कुल्ली शामिल नहीं था। तो अब हमें एक और कुल्ली ज़ाती लेकर आए जिसका दायरा इससे भी बड़ा है, ताकि वो उन मौजूदात को भी शामिल हो जाए जिनका वजूद तो है मगर जिस्म नहीं है। तो उनके ऊपर हम ले आए किसको? वो है जौहर। ठीक है? जब जौहर तक पहुंचे तो मा सिवल्ला, पूरी तवज्जो, जौहर तक जब हम पहुंचे तो मा सिवल्ला यानी हर वो चीज जिसका कायनात के अंदर वजूद है अल्लाह ताला के अलावा, वो सारी इस लफ्ज़ जौहर के अंदर दर्ज हो गई। जब दर्ज हो गई तो अब हमें मजीद इस कायनात के अंदर मौजूदात में से कोई वजूद रखने वाली चीज थी नहीं, ताकि मजीद जौहर के ऊपर हमें किसी और कुल्ली की एहतियाज होती। सिलसिला जौहर पे क्यों रुका है? इसलिए कि मौजूदात सारी हमने खाने के अंदर मुरतब कर लिए हैं। ध्यान नहीं दिया यार, तुमने टीप का बंद पड़ा है मैंने लचारी साहब। कायनात की सारी मौजूदात हमने, आपके पास किताबें ही खत्म हो गई हैं तो मजीद आपको खाने की जरूरत है? आपकी जितनी किताबें हैं सारी आपने खाने के अंदर बंद कर ली हैं। जब बंद कर ली हैं तो निज़ाम और तरतीब मुकम्मल हो गई है। तो अब मजीद आपको किसी खाने की एहतियाज, तो खाने बढ़ाते गए जब तक वो मौजूदात जो हैं अभी बिखरी हुई पड़ी थी इस धरती पे। तो हमने जब सब मौजूदात को, कायनात के अंदर वजूद रखने वाली सारी बिखरी हुई चीज़ों को तरतीब वाइज जमा कर लिया तो मुकम्मल हो गई। तो फिर जहाँ तक मुकम्मल होगी वहाँ पे सिलसिला रुक गया।
जौहर पे सिलसिला इसलिए रुक गया है क्योंकि जौहर तक पहुंचते पहुंचते तमाम मौजूदात तरतीब में आ जाती है। ठीक है जी। तो अब आपको इन मौजूदात की मार्फत हासिल करनी है तो पहले आपने उसका खाना मुअय्यन करना है। इसका खाना किसका है? इंसानात के खाने से है, हैवानात के खाने से है, नबातात के खाने से है, जिस्मानियात के खाने से है, या उससे भी जो मुबर्रा है उनसे है। पहले खाना मुअय्यन करो। खाना मुअय्यन करते ही आपने उनका दायरा इश्तिराक हासिल कर लिया है। दायरा इश्तिराक जो होता है ना, उसका दायरा बड़ा होता है, और बड़ा दायरा जो होता है, जितना दायरा बड़ा होता है उतना उसका फाहम आसान होता है। तो जो है कानून क्या है, जिस कदर दायरा बड़ा होता है उस कदर उसका फहम हासिल करना आसान होता है। जिस कदर दायरा छोटा करते जाओगे फहम मुश्किल होता जाएगा। क्यों? इसलिए कि दायरा छोटा होता है खसूसियात और कयूदात के इजाफे से। जितनी कयूदात बढ़ती जाएंगी उतना दायरा छोटा होता जाएगा। तो दायरे का छोटा होना मौकूफ है कयूदात की कसरत पर। तो आपको फिर उस छोटे दायरे वाली चीज की मार्फत हासिल करने के लिए जितनी अदद कयूदात हैं उतनी अदद चीजों की मार्फत हासिल करना होगी। जितनी कयूदात कम होती जाएंगी उतना दायरा बड़ा होता जाएगा। कयूदात के कम होने या ज्यादा होने को दखल है मार्फत के साफ होने में और सहल होने में। कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कयूदात के ज्यादा या कम होने को दखल है। जिस कदर कयूदात ज्यादा होगी उस कदर उसकी मार्फत, क्योंकि उसकी मार्फत महकूफ है इन्हीं कयूदात की मार्फत पर। तो जितनी ज्यादा है उतनी अदद हमें चीजों की मार्फत हासिल करना होगी, फिर जाके उस मुकय्यद की मार्फत समझ आएगी। तो आम दायरा जो है वो कयूदात से मुबर्रा होता है। अच्छा, तो चीज की आप मार्फत चाहते हो, इस कायनात के अंदर जितनी मौजूदात हैं आप उसकी मार्फत हासिल करना चाहते हो, तो मार्फत हासिल करने के लिए पहले आपको उसका खाना तलाश करना होगा कि भाई ये किस खाने से इसका ताल्लुक है। हमें उसूल की किताब चाहिए तो पहले हमें खाना तलाश करना होगा। मेरी लाइब्रेरी के अंदर उसूल का खाना कौन सा है, ताकि आप कहीं तारीख के खाने में उसूल ना ढूंढते रह जाएं। ठीक है। तो पहले आपको खाना तलाश करना होगा, और सेम तरतीब मिसाल वाइज वही बनेगी जो पहले हम कई बार दे चुके हैं। डाकिया जो है वो ज़ैद का घर कैसे तलाश करता है? पहले उसका जिला तलाश करता है, उसके बाद फिर तहसील पे जाता है, फिर डाक खाने पर, फिर इलाके पर, फिर गली नंबर मोहल्ले पर, दरवाजे तक पहुंच जाता है। तो बड़े दायरे से छोटे दायरे की तरफ एक एक कदम करके वो आसानी से सफर कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन यकदम उसे कहो कि डायरेक्टली ये जो बड़ा दायरा है छोटा दायरा की तरतीब है, इस तरतीब को हटाओ, डायरेक्टली ज़ैद के घर के जाकर ढूंढे, नहीं ढूंढ सकेगा वो। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है? बड़े दायरे से छोटे दायरे की तरफ जो है आप जाते हो तो आसानी से ज़ैद के घर तक डाकिया क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि बड़े दायरा वाला मार्फत आपको देगा उससे छोटे दायरे की, छोटे दायरे वाला मार्फत देगा आपको उससे छोटे दायरे की, उससे छोटा दायरा मार्फत देगा आपको उससे छोटे दायरे की, यहाँ तक के बाद मंजिल मकसूद तक पहुंच। तो हर दायरा अपने से माबाद दायरे की मार्फत दे रहा है। डायरेक्ट पहुंचेंगे तो आपके पास चीज नहीं है जो उसकी मार्फत आपको दे। ठीक है ना। तो आपने इन सारी कायनात को, अब सारी कायनात का लफ्ज़ जब मैं बोलता हूं तो आपके ज़हन में कोई मौजूदात का तस्वर आया है? नहीं आया। लेकिन जिस भी मौजूदात को आप उठाओगे पहले उसका खाने में जाओगे। जैसे ही खाने में जाओगे आधा सफर तुम्हारा तय हो गया है। देखो उसका खाना क्या है भाई, इंसान है, हैवान है, जिसमें नामी है, मुतलक है, जौहर है। पहले उसको मुतलका खाने की तरफ जाके पलटाओ कि उसका खाना कौन सा है। फिर खाने में जाने के बाद उस खाने के अंदर फिर हजारों हैं। उस खाने के अंदर, हर खाने के अंदर हमने हजारों मौजूदात को जमा किया हुआ है। तो अब ये उस खाने के अंदर जो हजारों हैं उनमें से ये कौन है? तो कहते हैं फिर वहां हम फासल लगाएंगे साथ। ठीक है। फासल लगाते ही वो हजारों में अब बात सैकड़ों में आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब फासल लगाने के बाद दो मरले तय हो गए, एक जिन्स का, एक फासल का। फासल के बाद मजीद अगर तुम चाहते हो कि मजीद इसको क्लोज किया जाए, ठीक है ना, कैमरे को जूम करोगे तस्वीर क्लोज हो जाती है,
مزید زوم کر کے کلوز کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اب فاصل کے بعد اس کے ساتھ اس کا خاصہ لگاؤ گے، صنف، اس کی صنف لگاؤ گے۔ صنف لگانے کے بعد مثلاً آپ نے جو ہے وہ ناطق فاصل لگائی، تو ناطق کی فاصل لگنے کے بعد بہت سارے افراد سینکڑوں اس کے اندر آ گئے۔ مزید کلوز کرنا چاہتے ہو، مذکر لگا دو، عالم لگا دو، شاعر لگا دو۔ عالم، شاعر، مذکر مؤنث یہ اس کے کیا ہیں؟ خاصے ہیں، اصناف ہیں اس کی۔ صنف لگا دو۔ صنف لگانے کے بعد مزید کلوز کرنا چاہتے ہیں اور زوم کرو، ہاں پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اب پھر مشخصات لگائیں گے۔ صنف کے بعد آگے جو لگے گی چیز وہ کیا ہے؟ مشخصات۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ مشخصات۔ مشخصات کیا ہوتے ہیں؟ وہ صفات جو اس کے تشخص کا کام دیں گی، وہ صفات، وہ خوبیاں جو اس کے پہچان دیں گی ہم کو، وہ کیا ہیں؟ ابن فلان ہے بھائی، نجم میں پڑھتا ہے بھائی۔ تو اب یہ مشخصات جب ساتھ لگاؤ گے تو ذریعہ لباس تک بندہ پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر یہی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب تمہاری فکر کے فہم کے قریب ہو جائے۔ اچھا، تو کلیات جو ہیں یہ فائدہ دیتی ہیں آپ کو منتشر بکھری ہوئی موجودات کو، بہت ساری چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان سب کو آپ ایک لفظ کے اندر سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے جو چیز کارآمد ہے اس کا نام کلی ہے۔ نو اضافی وہی، ٹھیک ہے، نو اضافی کلی ہوتی، وہ ان کی نو اضافی ہے، ویسے ہر کلی یہ کام دے جاتی ہے۔ تو اب انسانی افراد جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ فردن فردن آپ گنتی نہیں کر سکتے ہو، تو چاہتے ہو ان سب کو جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے، وہ کلی لفظ لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مدرسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو سب کا فردن فردن آپ نام نہیں لے سکتے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ایسا نام لینا، تعبیر لانی پڑے گی جو سب کے لیے جامع ہو۔ تو تم نے کیا کہہ دیا؟ طلاب۔ تو کلی کیا کرتی ہے؟ بکھرے ہوئے افراد کو جمع کر لیتی ہے ایک ہی لفظ کے اندر۔ تو ہم نے نو اضافی کا جو سلسلہ بنایا ہے تاکہ کائنات کے اندر یہ جو موجودات ہیں ان کو ہم اس ترتیب کے اندر، اس خانے کے اندر جمع کر سکیں، ٹھیک ہے؟ کلی جامع تعبیر ہوتی ہے، کس سے؟ ان افراد ہی، اپنے افراد سے۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو اپنی اپنی کلیات کے اندر درج کیا ہم نے۔ سب افراد کو، کائنات کے اندر جو بھی افراد ہیں ہر فرد کسی نہ کسی کلی کے تحت درج ہے، تو ہم نے تمام افراد کو ان کی اپنی کلی کے تحت درج کیا۔ کلی کے تحت درج کرنے کے بعد پھر کلیات کے اندر ہم نے مراتب بنا دے، یہ اس سے عام ہے، وہ اس سے عام ہے، وہ اس سے عام ہے، یہاں تک کہ جوہر تک یہ سلسلہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جزیات کا نہیں، یہ سلسلہ کلیات کا ہے، لیکن کلیات کا سلسلہ بنانے سے پہلے ہم نے ان کے افراد کو پہلے ان کی کلیات کے اندر جمع کیا، کلیات کے اندر افراد بند ہونے کے بعد پھر کلیات کو دوسری کلی کے تحت، اس کو تیسری کلی کے تحت، وہاں سلسلہ مرتب کیا ہے تاکہ پوری کائنات کی موجودات جو ہیں وہ ایک نظام کے اندر آ جائیں۔ اب تمام موجودات کی آپ کو اس ترتیب سے جب چلیں گے تو معرفت اور پہچان حاصل کرنا آسان ہو جائے گی۔ تو کلیات کا جو سلسلہ ہم نے بنایا ہے یا انواع اضافی کا ہم نے جو سلسلہ بنایا ہے یہ آپ کے پاس ایسے ہی سمجھو کہ آپ نے ساری فائلیں ایک فائل کے اندر بند کر دی، ٹھیک ہے؟ کثرت کو وحدت کے اندر سمیٹنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ انسانی نیچر ہے، کثرت کو وحدت کے اندر سمیٹتا ہے یہاں تک کہ اس وحدت تک جا کے پہنچ جائے جس کے بعد پھر آگے کوئی وحدت نہیں ہے، اس کو وحدت بسیطہ کہتے ہیں جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم بناتے ہیں افراد کو کلیات کے اندر جمع کرتے ہیں اور کلیات کو پھر اس سے بڑی دائرے والی کلی کے تحت درج کرتے ہیں، وہاں سلسلہ جو ہم بناتے ہیں یہ سلسلہ اگر نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ
जैसे बेटे से बाप, बाप से दादा, दादे से परदादा, इस तरह जाओ। तो ऊपर अगर आप तस्वर लेकर जाओगे, मिनल अखस से इलल आम व इलल आम व इलल आम, इस तरतीब से अगर चलोगे तो इस सिलसिले को कहते हैं सिलसिलातुल अजनास। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अजनास। अजनास जो होती हैं वो अफराद के लिए बाप की हैसियत रखती हैं। और अगर आप अजनास से अनवा की तरफ, अनवा से उनके अफराद की तरफ नीचे आ रहे हो, और मार्फत हासिल करने के लिए आपको जो है वो नजूलन आना पड़ेगा। ठीक है, आप बिखरी हुई चीजों को समेटना चाहते हो तो आपको सऊदन जाना पड़ेगा। सऊद नजूल पे तवज्जो करो यार, एनर्जी लगती है। बिखरी हुई चीजें आप मुरत्तब करना चाहते हो तो फिर सिलसिला कौन सा बनेगा? सऊदन। आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, समेटना चाहते हो तो सऊदन जाना होगा। मार्फत हासिल करना चाहते हो किसी फर्द की तो फिर आपको नजूलन आना पड़ेगा, आम से अखास की तरफ, फिर अखास की तरफ, मुशक्किसात के जरिए आप फर्द तक पहुंचोगे। तो ये सिलसिला क्या बन गया है? डाकिये का सफर अगर तस्वीर जहन में बनाओ तो नजूलन बनती है, जिले से सूबा, सूबे से जिला, जिले से तहसील इला आखिरी, तो ये तरतीब नजूलन है। तो मार्फत हासिल करने के लिए तुम्हें कौन सी तरतीब चाहिए? तो अब तरतीब कितनी हो गई? दो। एक तरतीब सऊदन है, एक तरतीब नजूलन है। उसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है? कहता है जो सऊदन तरतीब है ये अजनास की है, और इसका फायदा क्या है? बिखरी हुई चीजों को जामे उन्वान के तहत जमा करना, चीजों को मुरतब करने का ये काम देगी। जो नजूलन तरतीब है ये है अनवा की, और अनवा की जो नजूलन तरतीब है ये क्या फायदा देती है? कहते हैं ये बिखरी हुई चीजों को जमा नहीं करती, बल्कि ना आपको तमीज देती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मकामी चीज जो जिसका आप मार्फत हासिल करना चाहते हो ये आपको मार्फत का फायदा देगी, वो आपको चीजों को, बिखरी हुई चीजों को मुरतब करने का फायदा देगी। ये फिर वो बिखरी हुई चीजें जो आपने मुरतब करके रखी हैं, नजूली तरतीब के साथ आप मतलूबा चीज की मार्फत हासिल करोगे, तो उस तरतीब का फायदा और है, और जो नजूली तरतीब है इसका फायदा और है। दोनों के फायदे अलग अलग है। अगर जो सीढ़ी एक ही है, सीढ़ी एक ही है, नजूलन सऊदन जो सीढ़ी बनाई हमने एक ही है, लेकिन उसी सीढ़ी का जो है वो वापसी पे आएंगे तो नाम और हो जाएगा, जा रहे हैं तो नाम और हो जाएगा। जाएंगे तो मिनल अखस से इलल आम व इलल आम। अब आप चीजों को क्या कर रहे हो? बिखरी हुई चीजों को, मुतअद्दिद चीजों को वहदत के अंदर जमा करते जा रहे हो। अगर वापस आ रहे हो आम से अखास की तरफ तो अब क्या कर रहे हो? तुम इश्तराक हटाते जा रहे हो, कयूद हाथ लगाते जा रहे हो, दायरा छोटा हो गया, फिर कयूद लगाई, फिर दायरा छोटा हो गया, फिर काज लगाई, फिर दायरा छोटा हो गया, यहां तक कि आप ज़ै तक पहुंचोगे। ये चीज़ों की मार्फत का हासिल करने का तरीका है। तो चीज़ों की मार्फत हासिल करने का तरीका जो है ये तरीका तरतीब नजूली है, तरतीब सऊदी नहीं है। तरतीब सऊदी चीज़ों को मार्फत का फ़ायदा नहीं देती, बल्कि वो बिखरी हुई चीज़ों को एक जामे उन्वान के तहत सिर्फ जमा करने की या एक मुनज़्ज़म निज़ाम के अंदर उनको मुरतब करने की, तरतीब वाइज जमा करने का फ़ायदा देती है सऊदी तरतीब। वाज़ेह हो गई बात? ये है जी तुम्हारे दर्स का मरकज़ी ख्याल। बाकी इबारत के अंदर जो है वो कुछ लफ्ज़ी तर्जमे हैं, इंशाल्लाह जो है किताब में याद करें। फिर देने के बाद और सारी चीज़ों को इस तरतीब में जमा करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें तो बच जाती हैं। जो बच गई हैं बताओ, उनको भी दर्ज कर लेते हैं। जो क्या नाम है, जवाहिर नहीं है। जवाहर तो जवाहर आ गया ऊपर। हाँ, तो जो जवाहिर है वो तो इस सारी तरतीब में आ गए। हाँ, जो अवारिस हैं हाँ, वो तो इसमें नहीं आएंगे। हाँ, तो हम फिर जो है हमने ये जो जवाहर का सिलसिला बनाया है एक सिलसिला अर्ज का बना लेंगे। तो टोटल सिलसिले जो है ना, सिलसिले यानी एक फर्द से लेकर जवाहर तक जैसे हमने गए हैं, ये एक आपको सैंपल दिया है हमने। राइट, ठीक कहा आपने। तो हमारे पास जो टोटल सिलसिले हैं ना वो 10 हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मकूलात अशरा। उन 10 में से एक हमने अभी बयान किया है, जो सिलसिला है, जो मिसाल में बयान किया है, ये उन 10 में से एक है। इस सिलसिले को बोलते हैं सिलसिलातुल जवाहिर।
क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आए हैं मौजूदात वो सारी कौन सी हैं? वो मौजूदात हैं जिनको आप जवाहिर कह सकते हो, जिनका वजूद जौहरी वजूद है। वो चीज़ें ऐसी हैं जिनका वजूद जौहरी नहीं है, उनका वजूद अराजी है। ये वजूद की बहस आएगी, समझाएंगे जौहरी वजूद क्या होता है, अर्जी वजूद क्या होता है। तो अर्जी वजूद के लिए फिर हमारे पास 9 सिलसिले हैं। हर 9 क्या हैं? पॉइंट हैं। हर पॉइंट के नीचे एक सिलसिला बनेगा, जिस तरह हमने जौहर के नीचे ये सिलसिला बनाया है। हर पॉइंट के नीचे मकूला कैफ है, कम है, ऐन है, मता है, फेल है, इनफियाल है, जदा है, इला आखिर इजाफत है। तो ये जो मकूलात हैं, हर मकूले के तहत हमने एक सिलसिला बनाना है। वो उस आखिरी कुल्ली से लेकर कहाँ तक आना है? उस फर्द तक, या फर्द से उस आखिरी कुल्ली तक। यानी जहाँ तक हमें गुंजाइश बनती जाएगी, दायरा बड़ा करते जाएंगे। जैसे कि हमने अभी जहाँ तक मौजूदात का दायरा बन एहतियाती जौहर पे जाके रुक गए। जौहर पे इसलिए रुक गए कि हमारे पास किताबें खत्म हो गई थी। तो उनके सिलसिले में इसी तरह है, फर्द से शुरू करेंगे, उसकी जिनसे आली तक जाएंगे, और जिनसे आली जो है वहाँ तक पहुँचने के बाद उलमा ने कहा है कि मजीद इस कैटेगरी की मौजूदात नहीं है, ताकि और खाना ऊपर किया जाए। वो हिलास खाना जो है पूरी मौजूदात को उसके अंदर तरतीब में जोड़ लिया जाता है। तो जहाँ पर सारी मौजूदात जमा हो जाती हैं वो सिलसिला कंप्लीट हो जाता है। फिर आप दूसरे में आएंगे, तीसरे में आएंगे, इस तरह टोटल 10 सिलसिले उलमा ने बनाए हैं। इन 10 सिलसिलों के अंदर जिनका नाम है मकूलात अशरा, पूरी कायनात की मौजूदात मकूलात अशरा के अंदर बंद है। जिंदाबाद, ठीक इल्तिफात है तुम्हारा। तो पूरी कायनात की मौजूदात सिर्फ इस जौहरी सिलसिला तो हमने 10 में से सिर्फ एक नमूना है, मिसाल है। टोटल सिलसिले कितनी हैं? 10 हैं। तो पूरी कायनात की मौजूदात मा सिवल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वजूद रखती हो मगर इन 10 मकूलात के सिलसिले में वो दर्ज ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। कौलहु, मुसन्निफ का कौल, मुतसाइदतन बिअन यकूना अल तरक्की मिन खासिन इला आमिन। अनवाए इजाफिया को इस तरह जोड़ा जाए कि आप तरक्की करें खास से आम की तरफ। वज़ालिक, और ये कैसे होगी तरक्की? लिअन्ना जिन सुल जिन से यकूनो अअम्मु मिनल जिन से। नौ इजाफी की जिन्स उस नौ इजाफी से आम होती है। फिर वो जिन्स नौ इजाफी बनेगी, उसकी जो जिन्स है वो उससे आम हो जाएगी। फिर वो नौ इजाफी बनेगी, उसकी जो जिन्स है उससे आम हो जाएगी। तो जो नौ इजाफी की जिन्स होती है ना वो उससे आम होती है। तो हर जिन्स नौ इजाफी, फिर उसके ऊपर आपको जिन्स लगे, यहाँ तक कि आप जौहर तक जाएंगे। जौहर जिन्स है, नौ इजाफी नहीं है। अगर जौहर नौ इजाफी होता तो इसके ऊपर हमें फिर एक और जिन्स फर्ज करना पड़ जाती। वह कज़ा इलल जिन्स अल्लज़ी ला जिन्स फ़ौक़हु, आपका सिलसिला मुंतही हो जाएगा उस जिन्स तक जिसके ऊपर मजीद कोई और जिन्स नहीं है। जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो उसकी तारीफ या डेफिनेशन क्या है? वह हुवल जिन्सुल आली, उसको जिन्से आली कहते हैं, या जिन्सुल अजनास भी कहते हैं। कल जौहर है, जौहर की मिसाल दिया है उसने, असर नहीं किया है। ठीक है ना, क्योंकि जौहर के साथ 9 अजनास और भी हैं जो आली हैं अपने सिलसिले की। टोटल सिलसिले 10 हैं। कौलहु, मुसन्निफ का कौल, मुतनाजिलतन, आप जो है फिर उनकी गिनती मुतनाजिलतन भी कर सकती हैं। बेअन यकून अल तनज़्ज़ुलु मिन आमिन इला खासिन। और ये तनज़्ज़ुल कैसे होगा? ज़ालिक का इशारा तनज़्ज़ुल की तरफ है। लिअन्ना नौ ओल नौ यकूनु अखस्सु मिनल नौ। ठीक है, नौ की नौ उससे भी अखास होती है। ठीक है, नौ की मतलब हैवान नौ है तो इसकी आगे जो नौ है, यानी हैवान नौ इजाफी है, इसकी जो नौ इजाफी है वो इससे भी अखास होगी। जिसमें नामी नौ इजाफी है, इसकी आगे जो नौ इजाफी है वो इससे भी अखास होगी, वो हैवान है। हैवान नौ इजाफी है, इसकी जो आगे नौ इजाफी होगी वो इससे भी अखास है, वो इंसान है। यहाँ तक कि आप उस नौ पे रुक जाएं जिसके आगे नीचे अफराद शुरू हो जाते हैं। आखिरी नौ यही है, क्योंकि यकूनो
लेना नौ अल नौ यकून अखस्सु मिनल नौ, नौ की जो नौ होती है वो उससे अखास होती है। वहा कजा इला अन यंतही इला नौन ला नवा तहतहु, आप सिलसिला नजूलन ले जाएंगे उस नौ तक जिसके आगे मजीद नौ नहीं है बल्कि अफराद शुरू हो जाते हैं। तो इस नौ को क्या बोलते हैं? वह हुआ अल साफिल, जो सब अनवा के नीचे होती है उसको नौ साफिल कहते हैं, और नौ उल अनवा भी कहते हैं। तो अजनास का सिलसिला चूंकि सऊदन जाता है तो उसकी आखिरी को जिन्सुल अजनास, अनवा का सिलसिला चूंकि नजूलन होता है तो इसकी आखिरी नौ को नौ उल अनवा या साफिल। ठीक है, हाँ। तो अजनास का सिलसिला साफिल से शुरू होता है, आली पे मुंतही होता है। अनवा का सिलसिला आली से शुरू होता है, साफिल पे खत्म होता है। मिसाल क्या है आखिरी नौ की? अल इंसान। ठीक है, कौलहू मुसन्निफ का कौल वमा बैनहुमा, आप दोनों सिलसिले पहुंच गए ना, सऊदी सिलसिला नजूली सिलसिला, दोनों सिलसिलों का फायदा भी समझ में आ गया। एक का तरफ फायदा क्या है? चीज की मार्फत और तमीज। दूसरी का फायदा क्या है? चीज को, बिखरी हुई चीज को तरतीब के अंदर, निजाम के अंदर जोड़ना, जमा करना। वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन, इन दोनों के दरमियान क्या है? उनको मुतवस्सितात कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के जो दरमियान है, यानी एक तो आली हो गया, एक साफिल हो गया, जो दरमियान वाली हैं उनको क्या कहेंगे? उनको अनवाए मुतवस्सिता कहेंगे, उनको अजनास मुतवस्सिता कहेंगे। अजनास के सिलसिले के अंदर हैं तो अजनास मुतवस्सिता, अनवा के सिलसिले के अंदर हैं तो अनवाए मुतवस्सिता। अय मा बैन अल आली व साफिल फी सिलसिलतै अल अनवाए वल अजनास युसम्मा मुतवस्सिता, तो वो अनवा इजाफिया या वो कुलियात जो इन दोनों के दरमियान में आती हैं उनको मुतवस्सित का नाम दिया जाता है। फमा बैन अल जिन्स आली वल जिन्स साफिल अजनास मुतवस्सिता, तो बस वो अजनास जो जिन्स आली जिन्स साफिल के दरमियान में है वो अजनास मुतवस्सिता हैं, और वमा और वो जो बैन अल नौ आली वल नौ साफिल अनवा मुतवस्सिता। ठीक है जी, हाजा, अब ये रुक जाओ, मुसन्निफ ने मतलब यहाँ तक मुकम्मल कर दिया है, यानी तफसीर जितनी थी शारह की, मुसन्निफ की शारह ने मुकम्मल कर दिया है। अब इसके अंदर एक नुक्ता वो कहने लगा है जो कि तफन्नुन है, इल्मी नुक्ता नहीं है। भी इल्मी बात मुकम्मल हो गई है, तवज्जो है, इल्मी बात मुकम्मल हो गई है। मरकजी ख्याल दर्स का इतना ही था। आगे जो बात कह रहा है वो तफन्नुन है। वो क्या है? कहता है जो है ना लफ्ज़ वमा बैना हुमा, हुमा की ज़मीर का जो मर्जे है, कहता है इस मर्जे की तफसीर दो तरह की हो सकती है, यानी दो तरह के हम मर्जे इसके मुअय्यन कर सकते हैं। कहता है पहली तफसीर यह है कि आप दो सिलसिले बनाएं, एक सिलसिले का नाम रखो सिलसिलातुल अनवा, दूसरे सिलसिले का नाम रखो सिलसिलातुल अजनास। तस्वीर में कितने सिलसिले बन गए हैं? दो। एक का नाम अनवा का सिलसिला, दूसरे का नाम अजनास का सिलसिला। कहता है अनवा के सिलसिले में आ जाओ, नौ आली और नौ साफिल के दरमियान जो हैं ये हैं अनवाए मुतवस्सिता। फिर दूसरे सिलसिले में आ जाओ अजनास वाले में, जिनसे आली जिनसे साफिल के दरमियान जो अजनास हैं ये हैं अजनास मुतवस्सिता। तो हुमा की ज़मीर का मर्जे समझने के लिए आपको पहले दो सिलसिले बनाने हैं, एक अनवा का एक अजनास का। तो ऐसी सूरत में आप कहोगे नौ आली, नौ को नौ आली, सॉरी हाँ जी ऐसे ही है, तो नौ आली नौ साफिल, जिन्स आली जिन्स साफिल। तो हुमा की ज़मीर का जो मर्जे है वो क्या है? नौ आली नौ साफिल, खलास, जिन्स आली जिन्स साफिल। तो हुमा की ज़मीर का मर्जे आपने किसको बनाया है? दो सिलसिलों की जो निहायत और बिदायत है। इस सिलसिले की निहायत बिदायत वो मर्जे हो जाएगी हुमा का, इस सिलसिले की जो निहायत बिदायत है वो मर्जे हो जाएगी इस लफ्ज़ हुमा का मर्जे। खलास ना। कहता है दूसरी तफसीर हुमा के मर्जे की क्या है? वो ये है कि सिलसिले दो ना बनाओ, सिलसिला एक ही बनाओ। ठीक है, जब सिलसिला एक बनाओगे तो अब आप क्या करो? कहता है आली से मुराद ले लो जिन्स, साफिल से मुराद ले लो नौ, बैना हुमा उन दोनों के जो दरमियान में है वो मुतवस्सित है। अब गिनती फिर आप करेंगे कि आपने अब गिनती उस सिलसिले में, इस सिलसिले में फ़र्क क्या है? जब आप दो अलग सिलसिले बनाते हो तो अलग अलग सिलसिले होने की सूरत में
9 वाले सिलसिले की गिनती शुरू हो गई 9 साफिल से 9 आली से 9 साफिल तक, ठीक। और जिन्स वाले की शुरू होगी जिन से आली से जिन से साफिल तक। लेकिन जब आप दूसरे तस्वीर में आते हो कि आली से मुराद जिन्स ले लेते हो और साफिल से मुराद 9 ले लेते हो, तो इस सिलसिले में आपने गिनती का आगाज दोनों सिलसिलों को चूंकि जम कर लिया है, तो जम जब करोगे तो अब सिलसिले की गिनती कहाँ से शुरू हुआ है? कहता है आपने आली से मुराद ले लिया जिन्स, तो जिन्स की गिनती तो यहाँ से शुरू होगी, लेकिन 9 की गिनती यहाँ से शुरू नहीं होगी। जो इसके नीचे है वो क्या है? जिसमें मुतलक अनवा की गिनती वहां से शुरू होगी, वो तुम खुद करोगे अपनी समझ के मुताबिक। और यह है अजनास के ऊपर से जब नीचे आएंगे, और अगर नीचे से जब शुरू करेंगे तो आपने यहाँ साफिल से मुराद लिया है 9, और वो क्या है? इंसान। तो अब 9 की गिनती तो इंसान से शुरू होगी, मगर जिन्स की गिनती इंसान से शुरू नहीं होगी। कहाँ से होगी? हैवान से शुरू होगी। यानी जब आप सिलसिला दोनों का जम करके एक बनाते हो, इस सूरत में आपने खुद तशखीस देनी है 9 की गिनती किस से शुरू हो रही है, जिन्स की गिनती कहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन जब दोनों को अलग अलग बना दोगे तो फिर इस जहमत की आपको एहतियाज नहीं है, क्योंकि सिलसिले ही अलग अलग हो गए हैं, तो हर एक के सिलसिले की इब्तिदा इंतहा खुद वो आप ही हैं। कहते हाजा, ये तफसीर उस सूरत में है इन राजा अल ज़मीर इला मुजर्रद अल आली वल साफिल, अगर ज़मीर जो है लुटाई जाए साफिल और आली की तरफ। मुजर्रद क्यों कहा है? यानी उस आली और साफिल के साथ आप कायद ना लगाएं जिन्स की या 9 की। वे इन आदा इलल जिन्सिल आली वल नौल साफिल, क्या मतलब? यानी आली के साथ आप कैद लगा दो, आली से मुराद जिन्स आली, 9 के साथ साफिल के साथ कैद लगा दो, यानी 9 साफिल। अल मज़कूरैन सरियान, और मुसन्निफ की इबारत में सराहतन जो मज़कूर है वो यही 2 लफ्ज़ हैं, यानी वहां आली नहीं है, जिन्स आली है, साफिल नहीं है, 9 साफिल है। तो कान अल माना, तो फिर माना यूं बनेगा अन्ना मा बैनल जिन्सिल आली वल नौल साफिल मुतवस्सितातुन, वो मुतवस्सितात हैं। जब इन के दरमियान जो मुतवस्सितात हैं, तो अम्मा जिन्सन मुतवस्सित, वो जिन्स मुतवस्सित भी हो सकता है, व इम्मा नौल मुतवस्सित, वो 9 मुतवस्सित भी। ये पॉइंट शायद आपने नहीं गौर किया है। वो कहता है जब सिलसिला होगा अनवा का अलग, अजनास का अलग, अलग अलग सिलसिले की सूरत में जो 9 आली 9 साफिल के दरमियान है, वो सिर्फ अनवा मुतवस्सितात हैं, जिन्स मुतवस्सित नहीं कह सकते हो। और जब अजनास का सिलसिला है तो उसके अंदर जो मुतवस्सितात हैं उनको आप सिर्फ जिन्स से मुतवस्सित कहोगे, 9 मुतवस्सित नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का सिलसिला अलग अलग है। लेकिन सिलसिला जब दोनों का जम करके एक ही बना दिया जाए, तो अब जब लफ्ज मुतवस्सित बोला जाएगा तो उस मुतवस्सित से मुराद 9 भी हो सकती है, जिन्स भी हो सकती है। जिन्सुल मुतवस्सित व नौ मुतवस्सित मान कल जिस्म नामी, तो आपको जो है इसके अंदर मुतवस्सितात मिलेंगी, और जो मुतवस्सितात हैं हो सकता है कि वो 9 मुतवस्सित भी हो, जिनसे मुतवस्सित भी हो, और ये भी हो सकता है सिर्फ 9 मुतवस्सित हो, जिनसे मुतवस्सित ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो जिनसे मुतवस्सित हो, 9 मुतवस्सित ना हो। जिसमें मुतलक जिनसे मुतवस्सित तो है मगर 9 मुतवस्सित नहीं है, ठीक है। हैवान 9 मुतवस्सित तो है मगर जिनसे मुतवस्सित नहीं है, लेकिन इन दोनों के जो दरमियान है वो जिनसे मुतवस्सित भी कह सकते हो, 9 मुतवस्सित भी कह सकते हो। तो ये सिर्फ टेक्निक आपको दे रहा है कि आप इस तरह भी इबारतों को जम करके या तस्वीर मतलब की मुरतब कर सकते हो। सुम्मा इलम, जी बात खत्म हो गई है। वो सिलसिले जो थे उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बात खत्म हो गई है। आगे एक और ततिम्मा दे रहा है बहस का। सुम्मा इलम अन्नल मुसन्निफ लम यतअर्रज़ लिल जिन्सिल मुफ़रद व नौइल मुफ़रद, मुसन्निफ ने इस मकाम पर एक चीज़ बयान नहीं किया है। वो क्या है भाई जो बयान नहीं किया जी? वो एक जिन्स मुफ़रद है, एक नौ मुफ़रद है। जिन्स मुफ़रद नौ मुफ़रद किसे कहते हैं? कहते हैं उसको कहते हैं कि जो इस सिलसिले के अंदर दर्ज नहीं है, क्योंकि वो वसीत है। वसीत जो होती है, ये सिलसिला जो है अनवा इज़ाफ़िया का है। अनवा इज़ाफ़िया मुरक्कब होती हैं जिन्स और फासिल से, नौ मुफ़रद वसीत होती है, जिन्स फासिल से मुरक्कब नहीं होती ताकि वो किसी जिन्स के तहत दर्ज हो। मुसन्निफ ने इस मकाम पर 9 मुफ़रद जिन्स मुफ़रद को बयान नहीं किया है।
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مان لیا جائے کہ جنس مفرد نو مفرد بھی وجود رکھتی ہے تو ابھی قبلہ قلیل ہم نے جو بات کہی تھی کہ ساری کائنات کی بکھری ہوئی چیزیں ہم نے جو ہے سلسلے کے اندر بند کر دی ہیں، جو الگ سے پھر اور ہمیں مل گئی ہیں جو ابھی بکھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے نا. جمع کرنے کے لیے الگ سے پھر ہمیں ایک چھوٹا سا خانہ پھٹے ہوئے ورقوں کا الگ سے بنانا پڑے گا. ہوتے ہیں نا باسی کتاب جو ہے جن کی جلد پھٹی ہوتی ہے تو ان کو جو الگ سے ایک چھوٹے سے خانے میں ڈال دیتے ہیں. کیوں نہیں کیا ہے مصنف نے؟ اس کے دو جواب دیے ہیں شارح نے مصنف کی طرف سے اس کی وکالت کرتے. کہتے پہلا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مصنف بیان کرنا چاہتا تھا ان انواع کو جو کسی سلسلے میں جو کسی ترتیب کے اندر درج ہو سکتی ہیں، جو کسی نظام اور ترتیب کے اندر جن کو بند کیا جا سکتا ہے، ان انواع کو بیان کرنا چاہتا ہے، ان اجناس کو بیان کرنا چاہتا ہے. اور نو مفرد اور نو جنس مفرد جو ہے چونکہ وہ کسی سلسلے کے ترتیب کے اندر بند نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ اس کے مطلوب اور غایہ سے غرض و غایہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کو بیان نہیں کیا ہے. دوسرا جواب دیا ہے کہ بھائی صاحب پہلے ثابت کرو کہ ان کا وجود ہے صحیح. جنس مفرد نو مفرد ایک صرف نظریہ ہے یا ایک قول ہے جو مطرح کیا گیا ہے، پہلے اس کا جو ہے وہ وجود تو ثابت کرو. اس کے وجود کا ثابت ہونا یقینی بات نہیں ہے. جب ان کا وجود علی نحو یقین ثابت نہیں ہے تو سلسلہ کیسے بنے گا ان کا؟ اور صحیح قول یہی ہے کہ علی نحو یقین ان کا وجود ثابت نہیں ہے. لأن الکلام، پہلا جواب یہ ہے کہ کلام مصنف کی بات یا گفتگو جو ہے فیما ان کلیات کے اندر ہے، ان اجناس اور انواع کے اندر ہے، یترتب جو ترتیب کے اندر بند کی جا سکتی ہیں. والمفرد لیس داخلا فی سلسلۃ الترتیب، اور مفرد جو ہوتی ہے وہ ترتیب کے اندر نظام کے اندر درج نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی غرض کا تعلق ہی نہیں تھا مفرد سے، اس لیے اسے بیان نہیں کیا. واما دوسری وجہ جو ہے بیان نہ کرنے کی یہ ہے لعدم تیقن وجودہما،